हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बैलेंस डाइट है, एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। बैलेंस डाइट है क्या, आइए पढ़ते हैं। द फूड विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द होल पार्ट्स ऑफ बॉडी। या ये भी कह सकते हैं डाइट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स इन द राइट proportions required for the maintenance of health. We cannot get all these in a single article of food. To get it in right proportion, we have to mix certain articles in our diet. तो वो certain articles क्या हैं, उनको हम elements of balanced diet भी कहते हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं और एलिमेंट्स हैं बैलेंस डाइट के वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स और 6 पे आता है वाटर। अब बैलेंस डाइट में आता है कि हमें बैलेंस डाइट कितनी चाहिए और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये एक दूसरे से लिंक हैं। Different people have different lifestyles and varied nature of work. कुछ लोग जो होते हैं उनकी सीडेंट्री हैबिट्स होती हैं, वो कोई काम इतना ख़ास नहीं करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी सीडेंट्री हैबिट्स होती हैं डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज़ ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे। द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको कैलोरीज की टर्म में मेजर किया जाता है। द कैलोरीज रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन दी एज, जेंडर, हाइट, वेट, ऑक्यूपेशन एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर अबाउंडेंट इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ सेलुलोज। Their unit is glucose, which are composed of carbon, hydrogen, oxygen. Sugars give sweet taste, but polysaccharides are not sweet. Polysaccharides जो है वो भी carbohydrates हैं। They provide 60 to 80% of the total calories. A minimum of 100 grams of carbohydrates are necessary in diet. They are also stored as reserve food. The smallest unit or molecule of carbohydrate is glucose, having 24 atoms. इसका जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। They are classified as mono, di and polysaccharides. Sugar, mono and di are readily soluble in water. They can be crystallized and can pass easily through the membranes. Some example of food sources of carbohydrates are grains, maize, potatoes, honey and sugar cane, glucose, sucrose, starch, cellulose. Next हमारे पास आता है lipids और fats. Lipids are those substances which contain oils and fats. The term lipid was used by a biochemist belong to a group of fats and fat-like substances which are insoluble in water but soluble in non-polar solvents like ether, chloroform, hot alcohols, etc. They are large compounds having a common central chain of carbon atoms to which many hydrogen atoms are bounded by covalent bonds. It is the major source of energy in balanced diet. The maximum daily requirement of fats varies from 15 to 25 grams per day depending upon the intake of calories from other sources of diet. Some examples of the sources of lipids are जो animal sources हैं उनमें है butter, vegetable sources में है soybean and mustard. Next हमारे पास है proteins. Proteins are long-chain organic compounds composed of several number of amino acids. Their unit is amino acid. जो प्रोटीन का यूनिट है वो amino acid है और amino acid की different kinds हैं. Amino acids are different in taste. Some are sweet, proline, while other are bitter, tryptophan. ये प्रोलीन और ट्रिप्टोफेन जो है अमाइनो एसिड्स की काइंड्स हैं। दे आर नॉट अ रेडी सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी बट दे आर आल्सो स्टोर्ड एज रिजर्व फूड। प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। द स्मॉलेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ऑफ इंसुलिन। प्रोटीन्स की जो सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज जो हैं वो है मीट एंड फिश, मिल्क एंड एग्स, पल्सेस, बीन्स एंड पीस। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन्स।
Vitamins are those organic substances which do not provide energy, but these are very important for proper physiologic and metabolic functions of the body. Animals are unable to provide them, so they are taken from plants except vitamin D, which is also produced by the skin. विटामिन डी आपको पता है धूप में बैठने से इंसान खुद बनाता है और उसकी बॉडी में बनती जाती है और कभी कभी ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज कोएंजाइम्स एंड हेल्प इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस. विटामिन्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो है B1, B2, B6, B12 एंड C. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है A, D, E, K. Its deficiency produce specific diseases but excess is excreted out. Next हमारे पास है minerals. Mineral salts are those inorganic substances which play a key role in the maintenance and building of the body tissue. The most important minerals of balanced diet are phosphorus, iron, iodine, calcium. phosphorus आपको पता है कि बहुत ही important है बोन्स के लिए और टीथ की ग्रोथ के लिए. आयरन भी जो है एसेंशियल जो है कंपोनेंट है हमारे ब्लड का. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरोक्सिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. आयोडीन की कमी से आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे गाइटर हो गया, थायराइड की बीमारियां होती हैं. कैल्शियम जो है वो हमारी बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. रोल ऑफ मिनरल्स, हमारी बॉडी में मिनरल्स का क्या रोल है? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं और दीज आर क्रिटिकल टू बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग. ये क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं पीएच ऑफ द बॉडी, मेंटेन करती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में. नेक्स्ट हमारे पास है वाटर. आपको पता है कि वाटर के बगैर हमारी बॉडी जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती है. वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का. अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर. The average daily requirement of water is about 3 liters. अगर हम ज़्यादा पानी पिए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. It is constituent of blood, lymph, hormones and other secretions of the body. और ये हमारे बॉडी में एज अ व्हीकल काम करती है फॉर कैरिंग अदर न्यूट्रिएंट्स. आप इस टॉपिक के लास्ट में कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. आप जब भी कोई टॉपिक अटेंड करें उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन दिया करें. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डीप जाके इसको एक्सप्लेन नहीं किया. छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर दी. आप इससे अपने नोट्स भी लिख सकते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू.